Hello students, today we will discuss exercise 1.5. The question first in 1.5 is classify the following numbers as rational or irrational. हमें बताना है कि जो गिवन नंबर्स हैं वो रेशनल है या इरेशनल है. So look first part. The first part is 2 minus square root 5. So we know that 2 is rational number and square root 2 is irrational number. So the difference of a rational number and a irrational number is always irrational. So 2 minus square root 5 is irrational. In second part we have 3 plus square root 23 minus square root 23. When we solve it, here plus 23 and here minus 23. So minus 23 and plus 23 cancel. So we have 3 and 3 is a rational number. In third we have 2 square root 7 by 7 square root 7. Here square root 7 and square root 7 are cancelled. So we have 2 by 7 and 2 by 7 in form p by q. So it is also a rational number. The fourth one is 1 by square root 2. So you know that 1 is rational but square root 2 is irrational. So it is a irrational number. Now fourth, 2 pi. Now 2 pi, we know that pi is irrational number, then 2 pi is also a irrational number. Okay. Now second question, simplify each of the following. हमें इसको सिंप्लीफाई करना है. 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2. नाउ हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 3 को 2 से, 3 2 6, 3 स्क्वायर रूट 2, 2 स्क्वायर रूट 3 and plus square root 3 into square root 2 becomes square root 6. Second part we have 3 plus square root 3 and 3 minus square root 3. Here 3 are same and square root 3 square root 3 are same. When we take 3 as a and square root 3 b, so here we apply the formula a plus b into a minus b, a square minus b square. So a becomes 3 square minus square root 3 square. 3 square is 9 and square root 3 is 3. So 9 minus 3 equals to 6. Third part is square root 5 plus square root 2 and complete square. Here we use the identity a plus b square is equal to a square plus b square plus 2ab. So a is square root 2, so a is square root 5 square plus b is square root 2 square plus 2 into ab. A is square root 5 and b is square root 2. Now square root 5 square is 5, square root 2 square is 2 plus 2 into square root 10. We know that when we have a number in square root, then they are multiplied and taken in square root. So here 5 plus 2 7 plus 2 root 10. The fourth part is square root 5 minus square root 2 into square root 5 plus square root 2. Here we use a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. So a is square root 5 square minus square root 2 square becomes 5 minus 2 equals to 3. Now question 3 and 4 we have discussed in class. Now fifth question is rationalize the denominators. रेशनलाइज कैसे करते हैं. 1 बाई स्क्वायर रूट 7 को क्या करेंगे हम, स्क्वायर रूट 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. सो आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 7 और यहाँ स्क्वायर रूट 7 2 टाइम्स आया है तो स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर वी हैव स्क्वायर रूट 7 बाय 7. हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन अगर हमारे पास ये मोनोमियल का होता है तो उसी मोनोमियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं. लेकिन अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई एक्सप्रेशन होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर की जो भी बाइनोमियल इरेशनल नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. क्या करके, उसका जो कंजुगेट है उसके साइन को चेंज कर देंगे. ठीक है, देखिए जैसे कंजुगेट इरेशनल नंबर आपके पास अगर स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी है तो कंजुगेट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी हो जाएगा.
ओके, देखिए कैसे, अगर आपके पास 1/√7 माइनस स्क्वायर रूट 6 है तो हम इसको किससे कंजुगेट क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 6, इसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी से डिवाइड कर देंगे। अब आपका न्यूमरेटर में 1 और स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 6 है, सब सेम आ जाएगा। यहाँ आपका a प्लस बी और a माइनस बी यूज़ हो रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से आपका आ गया स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 6, यहाँ से स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर 7, स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर 6, सो 7 माइनस 6 क्या हो गया 1, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 6। सेम एज इन 1/√5 प्लस स्क्वायर रूट 2 में क्या कर देंगे, इसका कंजुगेट क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2, इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी से डिवाइड कर देंगे। ओके, इसी तरह आपका फोर्थ पार्ट है, इसमें 1/√7 माइनस 2 का कंजुगेट क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 7 प्लस 2, इसी से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, इसी से क्या कर दिया डिवाइड, तो आपके पास क्या आ गया स्क्वायर रूट 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर माइनस के 2 स्क्वायर, ये आपका आ गया स्क्वायर रूट 7 प्लस 2 7 माइनस 4, सो वी हैव स्क्वायर रूट 7 प्लस 2/3। ओके, योर एक्सरसाइज 1.5 is complete and you are given some questions, so try yourself to solve these questions. इसके बाद आपका आता है कंसेप्ट ऑफ रेडिकल्स, मीन्स इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास x⁴n अगर a के इक्वल है तो आपका x क्या हो, a की पावर 1/n होगा। ओके, मीन्स अगर x n है इज इक्वल टू a, देन आपका x क्या हो जाएगा a⁴1/n। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 2⁴n 3 के इक्वल है, देन आपका 2 किसके इक्वल हो जाएगा 3⁴1/n के इक्वल हो जाएगा। ओके, नाउ आपके पास कुछ एक्सपोनेंट्स के लाज होते हैं कि अगर आपके पास a कोई रियल नंबर है जो 0 से बड़ा है, p और q 2 रेशनल नंबर्स हैं, देन अगर आपके पास a⁴p इंटू a⁴q है तो किसके इक्वल हो जाता है, पावर्स ऐड हो जाती है क्योंकि बेस क्या है आपके सेम है, तो a⁴p प्लस q हो जाता है। सेकंड, अगर आपके पास a की पावर p है और उसी की पावर q है, देन आपका क्या हो जाएगा a⁴pq, मीन्स अगर पावर की पावर है तो वो क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। आपने ये लाज ऑफ एक्सपोनेंट 8th क्लास में भी पढ़े हैं। नेक्स्ट, अगर आपके पास a⁴p डिवाइड बाई a⁴q है तो क्या हो जाता है a⁴p माइनस q हो जाता है। अगर आपके पास a⁴p b⁴p मीन्स पावर सेम है तो बेस हम मल्टीप्लाई करके पावर लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास a⁻−p है तो वो डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, नाउ हम 1.6 एक्सरसाइज में इन लॉज का यूज़ करेंगे। सो देखिए आपकी एक्सरसाइज 1.6, क्वेश्चन फर्स्ट है फाइंड 64⁻1/2 32⁻1/5 एंड 125⁻1/3। ओके, 64⁻1/2, अब देखिए 64 को हम क्या लिख सकते हैं, हमें जो उसकी पावर है उसमें ही इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है, तो हम इसको क्या लिख देंगे 8 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर इंटू 1/2 है, हमने बताया कि अगर पावर की पावर होती है तो पावर्स क्या हो जाती हैं मल्टीप्लाई, तो 8 की पावर हो गई 2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल, क्या आ गया आपके पास 8 आ गया। सेकंड पार्ट में आपके पास 32⁻1/5, अब अगर हमें 32 को किसकी पावर 5 लिख सकते हैं, तो 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, हमने लिख दिया, तो ये भी क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया 2 आ गया। नेक्स्ट आपका 125 को क्या लिख सकते हैं 5 का क्यूब, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो पावर कितनी रह जाएगी 1, तो 5 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है 9⁻3/2 है, 32⁻2/5, 16⁻3/4 एंड 125⁻1/3। तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे 9⁻3/2। अब हम 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और कंप्लीट की पावर क्या है 3/2, तो क्या हो जाएगी 3⁻2 इंटू 3/2, 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 3⁻3, क्या आ जाएगा 27। सेकंड आपका 32⁻2/5 है,
तो 32 को हमने अभी बताया 2 की 5 लिख सकते हैं इंटू 2/5। तो यहाँ से 5 क्या हो गया कैंसिल, 2 की पावर कितनी 2 कितना आ गया 4 आ गया। थर्ड आपका 16 रेज टू पावर 3/4। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं 3/4 आएगा, तो 2 की 4 लिख दिया इंटू 3/4। यहाँ से आपका 4 कैंसिल, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 आ गया। इसी तरह 125 को 5 की पावर 3 लिख दिया, तो यहाँ से पावर -1/3 मल्टीप्लाई करेंगे 5 की क्या आ जाएगी -1। तो हमने बताया जब पावर माइनस होती है तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी 1/5। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड देखेंगे, सिंप्लीफाई करना है हमें इनको। तो फर्स्ट पार्ट है 2 रेज टू पावर 2/3 इंटू 2 रेज टू पावर 1/5। इसमें भी हम एक्सपोनेंट के लो यूज़ करेंगे क्योंकि बेस आपका सेम है 2, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी 2/3 प्लस 1/5। आपका एलसीएम आ गया 15, देन 3 5 10 आ गया, यहाँ से 5 3 जा तो 3 आ गया, 2 की पावर कितनी हो गई 13/15। सेकंड पार्ट में देखिए 1/3 रेज टू पावर 3 है और कंप्लीट पावर 7 है, तो दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। 1 की पावर 7 और 3 की पावर 3 है और उसी की पावर 7, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1/3 रेज टू पावर 27। थर्ड में आपके पास 11 की पावर 1/2 है, 11 की पावर 1/4 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 11 की पावर क्योंकि डिवाइड में है बेस सेम है तो माइनस हो जाएगी 1/2 माइनस 1/4। सोल्व करेंगे एलसीएम लेके तो क्या आ जाएगा 11 रेज टू पावर 1/4। नेक्स्ट आपका फोर्थ है 7 रेज टू पावर 1/2, 8 रेज टू पावर 1/2। यहाँ देखिए आपकी पावर सेम है तो बेस हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई 7 इंटू 8 रेज टू पावर 1/2, क्या आ जाएगा 56 इंटू 1/2। ठीक है, यहाँ से हम 56 को 4 इंटू 14 भी लिख सकते हैं, तो भी क्या आ जाएगा 56 इंटू रेज टू पावर 1/2। आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।